कितने लोगों ने चेस खेला है? आफ्टर समय रैना मेकिंग इट पॉपुलर, आई थिंक एवरीबडी हैज प्लेड इट। एक कॉलेज में एक स्टूडेंट बोला, भाई आपकी कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी क्या? आई डेलिबरेटली वोर दिस टी शर्ट की ये हैकर कप का, ऐसे तुम लोग हुडीज वगैरह जीत सकते हो। देखो इस वाले कॉन्टेस्ट में आपके ऊपर रैंक आया था, तो आप मेरे को अपनी टीम में ले लो आईसीपीसी में, ठीक है? दिस वाज माय पिच। आई नॉट रिकमेंड दीज थिंग्स टू यू गाइस, बट आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 PM. We used to give 5 hours gym contest on Code Forces, then come back and then participate in next things. This is me, my team representing my college and India in ICPC World Finals in Moscow. मतलब मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नीज दैट आई हैव वेंट थ्रू इन माई लाइफ। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सीखा बेसिक्स, फिर सेकंड ईयर में प्रॉपर डीएसए और पार्टिसिपेट करा एक बार, फिर थर्ड ईयर में फिर से और ज़्यादा टॉपिक्स सीखे, फिर फोर्थ ईयर में फिर से टीम में डिवाइड करके प्रैक्टिस करा, देन वी कुड गो टू वर्ल्ड फाइनल्स। सो इट टेक्स टाइम बिकॉज आई हैड डन सो मच ऑफ सीपी। गूगल की जो इंटर्न की इंटरव्यू थी वो मेरे लिए रैपिड फायर जैसी थी, मतलब वो पूछ रहे थे मैं बता रहा था आंसर। सब चीज़ एक्सप्लोर करना है, बट एक चीज़ पे यू हैव टू डबल डाउन वेरी हार्ड। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाज दैट फॉर मी। आई फील मैप्स आर फॉर टूरिस्ट्स एंड नॉट फॉर एक्सप्लोरर्स। पहला दिन किसी को अच्छा नहीं लगता है, पहला दिन लगता है कि ये क्या नया नया चीज़ दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट आफ्टर यू डू 3-4 months, दैट इज व्हेन द फन बिगिंस। If there is one marker in India that helps anybody the most in placements, it's competitive program. If I have to pick one skill from your college जो तुम्हें सबसे ज़्यादा impact देने वाला है, the things that have value mostly takes time. नहीं तो फिर हर कोई नहीं कर लेता। But if you keep practicing for 6 months, तुम्हारा improvement होना ही है। There is no way it cannot happen. When you have spent an episode, a growth episode together, is when you stay friends for life. तो अगर तुम उतना मेहनत करने को ready हो, तो आई थिंक कि आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स भी अचीवेबल है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में इंडिया में 1000 लोग भी नहीं होंगे जो 100 प्रॉब्लम करते होंगे। मम्मा कॉल है, अभी नहीं उठाएंगे, बाद में उठाते हैं। आई थिंक वी आर डन विद स्लाइड्स एनीवेज, आई जस्ट क्लोज द व्हाट्सएप। मॉम को जगह गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा था। Now I'll start with my introduction. My name is Vivek Gupta. For those who don't know, I happen to have been like associated with competitive programming for a very long time. Did a lot of competitive programming in my college. Second year, third year, fourth year, पूरा उस पे ही spend करा है mostly. ICPC, I have participated in ICPC and have represented India in the World Finals in Russia, right? Apart from that, I have been teaching from my third year college itself. I used to teach school students in US for this competition called USACO. Apart from that, I have been teaching on YouTube. I have been teaching mostly like easy, medium, advanced, mostly medium and advanced topics because I feel there are already too much of content on easy things available on YouTube. So I tried to contribute to the medium and harder segments because very few people create content on those spaces, right? I did an internship at Adobe, did an internship at Google, got a PPO offer, worked in Google for around 1.5-2 years. Post that, moved to 0x PPL, which is Prasanna's company. Worked there for around like more than a half of a year, and then moved into AlgoSenith full time because I was building this parallelly all the while. So have fair bit of idea about everything at this point, right? But आज हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे. I don't know if you have tried it, but it's a mind sport. You are essentially given bunch of algorithmic puzzles, right? And you have to solve it in a given amount of time. Setup तो यही होता है. But the majority of you needs to be very, very clear on why exactly are you gonna do this. And I have seen that mostly students do CP for 3 primary reasons. Internship placement, I don't know if you know this or not, बट मोस्ट कंपनी में तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इफ़ यू हैव डन गुड डीएसए एंड सीपी। मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे को पता चला कि आईसीपीसी करके कुछ होता है। सो माई सोल फोकस वॉज टू पार्टिसिपेट इन आईसीपीसी एंड समहाउ रीच वर्ल्ड फाइनल्स। लाइक ये कॉम्पिटिशन मेरे को क्रैक करना है, ठीक है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ओलंपियाड टाइप थिंग। एंड जो थर्ड थिंग है, इट्स लाइक व्हेन यू स्टार्ट गिविंग दिस कॉन्टेस्ट ना, यू विल रियलाइज कि वो जब टाइमर चल रहा होता है एंड ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप एंड it's a very gamified setup at times, which kind of is fairly addictive in nature. मतलब अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें मजा आने लगता है थोड़े टाइम में. So you have to choose why you want to do it. When I was in my college, during the initial days क्या होता है कि you have a very good peer group कि सब कोई ICPC के लिए कर रहे हैं. बट मेरे टाइम पे क्या होता था ना कि ICPC के लिए लोग इतना enthusiastic थे ही नहीं. 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं. Then it was very early actually. तो what I did was in my summers, I did a fairly गुड अमाउंट ऑफ सीपी, ठीक है?
in that summer only I used to give all the contests that used to happen and got a very good rating jump. उसके बाद when college started I saw that कि मेरे आसपास मुझे पता नहीं कौन टीम में, but I know from these sites कि मेरे कॉलेज के कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. So I reached out to bunch of seniors कि अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही ठीक ठाक करता हूँ, देखो इस वाले कॉन्टेस्ट में आपके ऊपर रैंक आया था तो आप मेरे को अपने टीम में ले लो ICPC में, ठीक है. दिस वॉज माई पिच टू मेनी ऑफ द सीनियर्स इन माई कॉलेज. इन माई सेकेंड ईयर आफ्टर गेटिंग रिजेक्शन, ठीक है, थोड़ा दर्द के सहने के बाद, देन आई स्टार्टेड सीइंग कि कौन लोग मेरे ईयर में अच्छा कर रहे हैं. सो आई फाउंड आउट नीतीश, शुभम, दीज आर माई बैचमेट्स हु आर डूइंग गुड इन CP. तो उनको आई कलेक्टेड एंड स्टार्टेड डूइंग CP टुगेदर. वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टुगेदर. सो 1 साल प्रैक्टिस किया. नेक्स्ट ईयर फिर से हमने ICPC थर्ड ईयर में पार्टिसिपेट करा. वी वेंट टू ऑनलाइन राउंड, उस पर एक डिसेंट रैंक आ गया था. सो वी वेंट टू 2 ऑफ द रीजनल्स, उसमें भी वी परफॉर्म्ड फेयरली वेल. थर्ड ईयर खत्म हो गया है, फोर्थ ईयर जा रहे हैं, लास्ट ईयर ऑफ माई बैचमेट्स. सो आई वाज लाइक कि अब तो वर्ल्ड फाइनल्स के लिए फाइट मारना ही पड़ेगा. सो देन व्हाट वी डिड वाज वी डिसाइडेड कि ये टॉपिक तू पढ़, ये टॉपिक मैं पढ़ूंगा अच्छे से, इसका हम लोग, मैं हार्ड क्वेश्चन इसका मैं देखूंगा, तू इसका हार्ड क्वेश्चन देख लेना. एंड देन वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अगेन नेक्स्ट ईयर प्रेप. So then in my fourth year we participated online round में, we did really well. In one regionals I remember कि कुछ तो भी एक क्वेश्चन जो बाकी लोग टीम से बन गया और हमसे बन ही नहीं रहा था, वो इजी क्वेश्चन था. हमने एक हार्ड क्वेश्चन बना दिया बट हमसे एक इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. सो उसमें कुछ 30 रैंक आ गया. देन वी वर वेरी स्ट्रेस्ड कि इस साल तो हमें शॉर्टलिस्ट होना है, 30 में तो एशिया वेस्ट भी नहीं आएगा. सो देन वी वेंट टू द सेकंड रीजनल जिसमें हमारा शॉर्टलिस्ट आया था. तो उसमें वी डिड वेरी वेल. उसमें मतलब आई थिंक वी वर सम फोर्थ टीम. तो देन वी गॉट स्लॉट फॉर वर्ल्ड एशिया वेस्ट फाइनल्स. एंड फिर एशिया वेस्ट फाइनल्स में we then participated. 4 टीम ऑलरेडी फाइनलाइज थी. There were exactly 8 slots left. So we went to Asia West. There we got a decently good rank, मतलब in the top 8, and we finally got a slot in World Finals. Turn forward in 2020 में जो World Finals होना था मॉस्को में, due to COVID it got shifted to 2021. ठीक है. But this is me, my team representing my college and India in ICPC World Finals in Moscow. Right? This is essentially the live with a dream, which I feel very few people do these days in India. If you don't set a long-term goal for yourself, कि ये जैसे मेरे लिए क्या था कि मेरे को ICPC क्रैक करना था. Throughout my college, my north star was कि मेरे को ICPC पहुंचना है किसी भी तरह, right? तो even though I had to do all these, मतलब मेरे को भी classes attend करनी ही पड़ी है, and I have to also do assignments and stuff, all these things. But still I used to figure out some amount of time कि कैसे करके मैं इसके लिए प्रेप करूँ. तो अगर तुम उतना मेहनत करने को रेडी हो तो आई थिंक कि ICPC वर्ल्ड फाइनल्स भी अचीवेबल है. ठीक है. और नहीं भी हुआ तो यू विल ऑलवेज एंड अप एट अ वेरी गुड प्लेस. मतलब मैं अगर ICPC वर्ल्ड फाइनल्स नहीं भी पहुंचता तो भी मेरे लिए गूगल की इंटरव्यू ईजी हो चुकी थी ऑलरेडी तब तक, है ना. सो दैट इज द प्लेस यू वांट टू बी एट. ओके, यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग दैट यू फील लाइक. मतलब at this point, like in AZ I have taught more than 5,000 students. In colleges also I have interacted with many students. तो मुझे पता है कि लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि विवेक ये करना है वो करना है, क्या प्रिपेयर करे, फर्स्ट ईयर में क्या करे, भैया आपने गूगल क्यों छोड़ी, ये वो जो भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकती है. ठीक है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर. ठीक है. एक कॉलेज में एक स्टूडेंट ने बोला भैया आपकी कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी क्या. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन भी लोग पूछ लेते हैं बट ये नहीं पूछना है. ठीक है. So now we'll open it up to AMA, which is ask me anything. Yeah, so like कल मैं एक problem solve कर रहा था. थोड़ा सा mic close ले लो. Like I was solving a problem yesterday. It was on 2D array spiral matrix. I gave one whole day. I solved it partially. थोड़े से test cases पास हो गए, बाकी रह गए. So ideally कितना time देना चाहिए एक problem पर, फिर हमें hints ले लेने चाहिए. So तो देखो यार, the question is how much time should I spend on a problem before looking at solution या hints. I think that is the main question, है ना. तो depends on your target. अगर तुम OA में देखोगे ना, ऑनलाइन असेसमेंट में, तो you have to solve around 3 problems in 1.5 hours. So 30 minutes per problem, right? तो अगर तुमसे 30 मिनट में एक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो it's not going to help you eventually. So my thought process is if you are preparing for internships and placements only, that's your goal why you are doing it, then you should keep a marker of 30 minutes. उसके बाद टाइमर बज हो गया तो अब मैं solution कुछ तो hint या solution पढ़ूंगा. Also never see solution codes, read the idea, try to implement yourself. Then only you improve your implementation skills. फिर वो नहीं हुआ तो कोड देखो.
right? That is the process every time, that this is what you should follow, and that will help you like do things very very fast. So I want to ask a question that I am interested in both open source and CP. So how do you think I can balance both things? Because That's a very good question. Balance करना है, right? Yes. और किसी, so my, like what I did right in my first year I feel was I explored a lot. मैंने data science भी थोड़ा सा explore किया था जो मुझे बहुत boring लगा. फिर मैंने ऐसे like open source भी थोड़ा बहुत try किया, but eventually my हार्ट स्टक एट CP की भी मुझे अच्छा लग रहा है ये करने में, है ना. तो दोनों पर अगर मुझे करना है तो माई जनरल स्ट्रैटेजी इज टू स्प्लिट सेमेस्टर्स. जैसे सपोज अभी ICPC आ रहा है, तो ICPC के पहले वाले सेमेस्टर्स में तुम्हारा पूरा फोकस है मैं CP करूँगा, DSA करूँगा, राइट, वो कंप्लीट हो गया. फिर मे बी GSOC आ रहा है तो उसका कुछ सबमिशंस आ रहे हैं, तो उसके लिए तुम प्रिपेयर कर सकते हो, राइट. बट मुझे ऐसा लगता है कि सेमेस्टर वाइज अपना मेन गोल ब्रेक डाउन करना इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. Sir, like how you used to practice questions, like first of all, you have studied a particular topic and you have practiced question on it. So how you figure out that what is the next step, what you want to do, like which topic or what kind of questions you want to practice? Okay. See, there is not much of difficulty in knowing topics. सबसे पहला गोल होता है you have to learn a language very well. My recommendation will be C++. Always. Why? Because even though Java से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि Java से you cannot do DSA and all. But since 70% of the community of competitive programming is doing it in C++, तो तुम्हें C++ पे करोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा. बिकॉज वेन यू गो टू हार्डर प्रॉब्लम्स तो उसके तुम देखोगे कि सोल्यूशन आइडियाज, एडिटोरियल्स वो सब C++ में लिखे हुए हैं कोड्स, ठीक है. प्लस डाउट्स एंड ऑल तुम जो पीयर्स C++ में कर रहा है उनसे तुम हेल्प ले पाओगे. तो ये सब चीज़ जनरली C++ की तरफ ही प्रमोट करता है. प्लस वन वेरी बिग रीजन इज C++ इज फास्टर एंड जावा पाइथन थोड़ा स्लोअर लैंग्वेजेस है बाय डिफॉल्ट, बाय डिज़ाइन थोड़ा. एंड तुम मुझे पूछ रहे हो विवेक किस ऑर्डर में टॉपिक सीखना है. मुझे लगता है सबसे पहले तो एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी से आनी चाहिए, C++ फॉर एग्जाम्पल. देन यू हैव टू लर्न द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट एग्जिस्ट, स्टैक, क्यू, तुम लोग ये सब चीज़ें पढ़ोगे वैसे अभी. एंड देयर इनबिल्ट टूल्स दैट आर अवेलेबल इन द लैंग्वेज जिसको STL लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है. फाउंडेशनल मैथ्स, बेसिक कॉम्बिनेट्रिक्स, बेसिक नंबर थ्योरी, बेसिक अलग अलग टेक्निक्स एग्जिस्ट करती है एंड फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, वो पढ़ने पड़ती है. जैसे बाइनरी सर्च तुम बोलोगे तो हाँ दैट्स अ गुड टेक्निक, लाइक इट्स अ टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चन एंड उसके अलग अलग ब्रेक डाउन होते हैं कि उसमें बाइनरी सर्च तुम एक लीनियर एरे पे कैसे लगाओगे, बाइनरी सर्च ऑन आंसर करके एक टेक्निक होता है वो कैसे करोगे, राइट. उसमें भी अलग अलग चेक मेथड्स कैसे लिखोगे. तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स सीखनी पड़ती है ओवर टाइम. तो एक एक टॉपिक सीख के देन यू कैन एक्सप्लोर गुड. तुम whichever topic you are trying to learn, if you just write best blogs on that topic, YouTube videos on that topic, तुम्हें मेरे YouTube पे भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगे. DP का एक प्लेलिस्ट पूरा बना रखा है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करके. तो ऐसे बहुत तुम्हें रिसोर्सेज नेट पे मिल जाएंगे. बट अगर नहीं पता कि क्या करना है, माई सिंपल एडवाइस इज तुम कॉन्टेस्ट दो. तुमसे 3 प्रॉब्लम बनी, चौथे प्रॉब्लम नहीं बना, वो किस टॉपिक का था देखो, तुम्हारा नेक्स्ट वीक का टारगेट है, वो टॉपिक तुम्हें पढ़ाई करनी है, खत्म. That earlier that people used to reach candidate and specialist, it was a very good thing. But now with the help of AI, some with their own mind and some with a mix of AI and their mind, reach a candidate, master and specialist very easily. So currently what is the new mark on which someone can judge you that yeah, you have done a mark in the CP? Okay, so the question is very relevant. Sir, AI is now here. How can we differentiate with others who are using AI to participate in contest and get rating and all? ठीक है. On code forces and all there are contests that happens and उस पे ratings होती है. Specialist like एक certain rating में होता है. Then you are expert, candidate, master and so on. So if you are, I think still the marker is expert plus. तुम्हें expert plus तो पहुंचना ही पड़ेगा. बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इफ यू हैव द हायर एंड मॉडल्स एंड तुम उसको यूज़ करके सही से प्रॉम्प्टिंग करके करो तो शायद वो भी सॉल्व करके एक्सपर्ट बन जाए आज के टाइम पे, ठीक है. CM इट्स हार्ड, कैंडिडेट मास्टर इज हार्ड, बट देर इज नो सच मार्कर डायरेक्टली. एक तो ICPC इज अ वेरी गुड मार्कर इफ यू आर गेटिंग टू ICPC एशिया वेस्ट फाइनल्स या वर्ल्ड फाइनल्स, तो दैट इज अ वेरी गुड मार्कर डायरेक्टली. बाकी ऑनलाइन मार्कर्स हैव बीन रेंडर्ड इनरेलेवेंट दीज डेज. अभी भी कंपनीज उसके बेसिस पे हायर कर रही है. इफ़ यू आर अ कैंडिडेट मास्टर आई कैन श्योरली से दैट यू विल बी वेरी गुड, तो आई ऑल्सो वुड कंसिडर यू. बट बिलो दैट रेटिंग्स में बहुत डिफरेंस नहीं रह गया है. तो रेटिंग को चेज मत करो. मतलब आई थिंक इट वॉज देयर इन द स्लाइड्स, आई डिड नॉट मेंशन इट प्रॉपर्ली. रेटिंग्स को चेज करना बंद कर दो, ठीक है.
इट विल गेट इनफेक्टिव इन द नेक्स्ट 2 years. जब तक तुम इंटर्न प्लेसमेंट में आओगे तब तक रेटिंग्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. सो इट्स जस्ट लाइक कि तुम कितना अच्छा सॉल्व करते हो उसका एक मार्कर है रेटिंग, राइट? बट रेटिंग तुम्हें डिफाइन नहीं करती है, तुम्हारा स्किल्स रेटिंग डिफाइन करता है. इट्स लाइक अ कॉज, कोरिलेशन है उन दोनों के बीच में, बट कॉजेशन नहीं है. ठीक है? सो रेटिंग्स इज नॉट द मार्कर. प्लीज रेटिंग के पीछे मत भागो. So this is a question regarding team formation. So one of the most easiest part is when you're doing CP is to do it individually. But when it comes that ICPC is now near to you, okay? And there is thing that you never do CP alone. You're doing it with a friend, right? So now this is not my question. I have a team already and I love my team, so don't go and complain to them. Okay? Yeah, the question is, I was asked this question by my juniors and they said, okay, there is a friend of mine who wants me to be in his team. But I feel like he is not as good as the other people I see. And I personally want to excel in that contest. Now I am confused how to go and approach the people who are at a higher level than me. या मतलब ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है कि लाइक देयर इज नो राइट आंसर टू इट, बट देन माय अंडरस्टैंडिंग इज लाइक व्हाट इज योर गोल. अगर मुझे सच में उस पीक पे पहुंचना है तो देयर इज नो अदर वे देन कॉम्पिटेंस, सोलो कॉम्पिटेंस. ठीक है? मतलब यू नीड टू फॉर्म टीम्स वेयर एवरीबडी इज गुड. मतलब ऑल ऑफ अस वेयर 2100 प्लस व्हेन वी वर गिविंग द फोर्थ अटेम्प्ट ऑफ सॉरी इन आवर फोर्थ ईयर फॉर ICPC. सबने मास्टर रीच कर लिया था बाय द टाइम. तो एवरीबडी इन द टीम हैज़ टू बी गुड. एंड मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू वांट टू अचीव, इफ़ योर गोल इज वर्ल्ड फाइनल्स, तो तुम्हें फ्रेंड्स के ऊपर चूज करना पड़ेगा कि आई हैव टू बी इन अ टीम जहाँ पर कॉम्पिटेंस हाई है. बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट इन फर्स्ट ईयर, इट्स बेटर टू स्टार्ट इन विद अ फ्रेंड्स टीम कि सब कोई मोटिवेटेड है. बट यार नंबर 1 मार्कर होता है मोटिवेशन एंड कॉम्पिटेंस. दो ही चीज़ है. कॉम्पिटेंस भी होनी पड़ेगी और मोटिवेशन भी होना पड़ेगा. दोनों में से एक भी मिसिंग है तो नॉट द राइट पर्सन टू बी इन टीम. ठीक है? So my question is that when we keep solving the questions, when we do the contests and all, as a beginner we all fail, we rise up. But when we are quite long into it and that failure comes, how do you actually rise from it? Like what kind of rewards do you give yourself when you achieve some level, or how do you actually rise from that failure? Because sometimes it becomes really, really tough to get back into the things. यार तुम तो फिर बोलोगे कि ये अगर मैंने जब स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मेरी रेटिंग ऐसे नीचे जाती थी सिर्फ. ठीक है? बैक देन रेटिंग यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 1500. अभी 0 से स्टार्ट होता है, राइट? बैक देन इट यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 1500. तो मैंने जब स्टार्ट करी तो मेरी रेटिंग सिर्फ नीचे ही जा रही थी और मैं न्यूबी बन गया. मुझे पता चला था कि ये क्या हो रहा है, तो फिर तो मुझे छोड़ ही देना चाहिए. बट इफ़ यू लीव इट ओवर हेयर, तुम ये ग्राफ तो कभी देख ही नहीं पाओगे, राइट? एंड द थिंग इज दिस इज अ गेम ऑफ हिल्स एंड प्लेटू. मतलब तुम इस लेवल पे रहोगे, फिर जंप करोगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे रहोगे, फिर जंप करोगे, फिर उस लेवल पे स्टैग्नेटेड रहोगे, फिर जंप करोगे, फिर स्टैग्नेटेड रहोगे, फिर जंप करोगे, फिर स्टैग्नेटेड रहोगे, फिर जंप करोगे. ऐसे करके चलता रहेगा ये चीज़. ठीक है? तो मोस्टली चीज़ें ऐसी ही चलती हैं. मतलब दिस इज तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही होनी चाहिए कि यू विल बी हिटिंग अ प्लेटू 4 months, फिर तुम्हारा नेक्स्ट ग्रोथ आएगा. क्योंकि तुम्हें कंसिस्टेंटली सारे टॉपिक का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है. दैट इट टेक्स टाइम. तो टाइम तो लगेगा नेक्स्ट ग्रोथ लाने में. Recently, I have read somewhere that Meta is allowing candidates to use AI in their coding rounds. So, how do you think that this will affect my preparation for placements in the next 2 to 3 years? Yeah, did you not hear that Google has said that they will have in-office interviews, offline DSA tests? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मेटा में ही हो जाएगा तो छोड़ दो DSA करना फिर. बट सच बताऊं तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज दैट मच एज यू आर थिंकिंग. थिंग्स आर there are only 2 ways hiring is going to go in the next 10 years. Either it will become network driven only, which is referrals and direct contacts, or it will become offline. इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, because now we will have for sure, जैसे chess में there is an engine which can play better than any human. उसी तरह there will be an AI which will be able to do it better than most people. तो इसका मतलब क्या, वो खत्म ही हो जाएगा क्या? नहीं, chess तो बंद नहीं हो गया ना. फिर तो अगर if there is an engine which can beat any human, तो फिर तो चेस को खत्म हो जाना चाहिए था आज के टाइम पे. Why does it not happen? Same reason goes here. It will go offline mostly, but you will keep having DSA interviews still. आपने एक क्वेश्चन पूछा था डॉन मीटर से एक इंटरव्यू में, तो मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन है
एक कैंडिडेट मास्टर और मास्टर के माइंड में क्या डिफरेंस होता है? यार 3 चीज़ें मुझे लगती है जो डिफर करती है. एक स्पीड तो होता है, मतलब आई थिंक स्पीड ऑफ थिंकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही होता है. मतलब द सेम थिंग दैट यू वुड थिंक इन 20 minutes, अ मास्टर वुड बी एबल टू डू इट इन 10 minutes और सो. सेकेंड इज कि आई नो मोर टेक्निक्स. मतलब आई जनरली सी दैट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो कोरिलेटेड होती है, मतलब कि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं एंड बाय दैट वर्च्यू दे हैव सीन मोर टेक्निक. इवन व्हेन आई सॉल्व क्वेश्चंस टुडे 80% क्वेश्चंस मेरे देखे हुए ही होते हैं, मतलब आइडिया इन सम अदर फॉर्म, एंड 20% ही नए होते हैं मैक्सिमम. तो देखा हुआ आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है सीपी में. तो एक्सपीरियंस कीप्स बिल्डिंग, तो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है. एंड थर्ड थिंग मुझे ऐसा लगता है कि प्रूविंग स्किल्स उनका थोड़ा और बेटर होता है. रीजनिंग स्किल्स अगर मैं बोलूँ तो, कि इंट्यूशन बिल्ड करके उसको, मतलब क्यों ये सही है, ये वो बहुत जल्दी प्रूव कर पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. यार ये तो बहुत ही सीनियर क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग. जूनियर का क्वेश्चन पूछ रहे हो, फर्स्ट ईयर्स बैठे हैं यहाँ पर. कैंडिडेट मास्टर भैया अभी पहुँचे ही नहीं है वहाँ तक. नहीं सर, पहुंच गए. हाँ तुम लोग तो पहुँचे हो, ठीक है, गुड. तुम लोग के यार गाइस, तुम लोग के सीनियर्स ऑलरेडी बहुत, लाइक आई नो यू गाइस हैव जस्ट केम एंड आई रिमेंबर व्हेन वरुण एंड ऑल, जब पिछली बार सेशन किया था हम लोगों ने, लाइक आई हैव बीन टू दिस कॉलेज बिफोर. तो मम्मा कॉल है, अभी नहीं उठाएंगे, बाद में उठाते हैं, ठीक है. तो एक सेकंड रुक जाओ. आई थिंक वी आर डन विद स्लाइड्स एनीवेज. आई जस्ट क्लोज द व्हाट्सएप. मॉम को जगह गर्लफ्रेंड का फोन आता तो ठीक है. तो लाइक यू हैव वेरी गुड सीनियर्स हु कैन गाइड यू. मतलब दीज फोक्स आर लेजिट 1900 एंड ऑल, जो मतलब इतने तो दूसरे कॉलेज में लोग ही नहीं होते, ठीक है. तो इंटरेक्ट विद देम एंड ट्राई टू build a smaller community. Like I think you have your club right now, so start having meetups, practice sessions together. I think what happens is उससे क्या है कि you will get to know कि process क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. मतलब I am someone who has done good amount of CP. Obviously I have more experience. I have been teaching for a very long time now, तो experience तो है. But again you don't always need someone एकदम top पे जो तुम्हें help करे. You just need someone who is 2 steps ahead of you, so that they have solved the problems you are just facing. भैया स्टार्ट कैसे करें, तुम्हारे सेकेंड ईयर सीनियर्स ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा अभी तक, राइट. तो यू कैन डिस्कस विद देम. तो योर 1-2+ सीनियर्स आर गुड इनफ मेंटर्स फॉर यू टू गेट स्टार्टेड एट द स्टार्ट. एंड देन ऑब्वियसली लाइक यू कैन कम टू मी. यूट्यूब पे बहुत, मतलब मैं भी हूँ और भी लोग, जो लोग कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. These people keep adding more and more content. You can keep reaching out to us too. And that is generally the process. Yes. So this is a question from somebody. I'll read the whole message for you. Okay. So, hi sir, I saw you in my college and your session is really useful for us. There is one thing that, can you please tell, is CP only for great-minded people? Because I particularly can't think of logics very easily. And I want to know whether I should continue in this domain of CP or is it not for me? Because in my initial days when I came to my college, I did CP for like 2 months and then paused it because my college CGR was getting affected. And now I'm in second year and I've started it again. But it feels that it's a bit more difficult. And also I see my peers and they are way ahead of me because they didn't discontinue. Now it feels this feels demotivating for me. Can you please help and guide? And what should I do? So what he's asking is, I have discontinued, so I am no longer in touch. I see there are 2 aspects. One is I feel I am not made for this. ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है कि थोड़े टाइम तुम कुछ भी करोगे ना. आई थिंक एक और तुम लोगों को ग्राफ दिखाता हूँ. दिस इज अ रियल सेटअप. नो मैटर व्हाट फील्ड यू स्टार्ट, तुम स्टार्ट करोगे तुम्हें लगेगा कि अरे मैंने बेसिक से C++ सीख लिया, मैं तो अब गॉड कोडर हूँ, ठीक है. फिर स्टार्ट करोगे DA से, तुम्हें लगेगा कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए ये चीज़. एंड देन यू धीरे धीरे सीखते हो, देन यू रीच अ स्टेबल स्टेट कि हाँ अब मेरे से बन रहा है. तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यही रियलिटी है. एंड इफ़ यू आर हेयर, दैट डजंट मीन यू आर नॉट मेड फॉर इट, ठीक है. मुझे नहीं लगता कि CP करने के लिए बहुत हाई IQ चाहिए, एटलीस्ट एट द स्टार्ट. क्या तुम ग्रैंड मास्टर बन सकते हो विदाउट IQ? आई डोंट थिंक सो, ठीक है. बट मुझे ऐसा लगता है कि आई डू हैव डिसेंट IQ, बट मैंने एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मेहनत किया, इसलिए मेरा रेटिंग हाई है और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं.
मैंने आज तक 3000 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, मतलब जब मैं कॉलेज के फाइनल तक पहुंच रहा था। 3000 प्रॉब्लम मतलब होता है अगर 3 साल किया है तो साल के 1000 प्रॉब्लम, दिन के 3 प्रॉब्लम एवरेज एवरी डे फॉर 3 years। ठीक है, तो आई हैव पुट इन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड इसलिए मैं अच्छा हूँ। एंड मोस्ट पीपल एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल के ही अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो IQ हेल्प्स, बट टिल आई थिंक मे बी थोड़ा एडॉक वगैरह में हेल्प करता है IQ, बट यू कैन लर्न इट। मतलब मैथ्स, आई थिंक आई हैव ऑल्सो मैंशन दिस टू मेनी स्टूडेंट्स, देर आर सर्टेन बुक्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स ओलंपियाड का एक पुराना बुक आता है INMO करके, राजीव मनोका करके, फिर देर इज़ अ बुक कॉल्ड आर्थर एंजल करके। इन सब बुक्स के तुम लोग पढ़ सकते हो। इट हेल्प्स यू बिल्ड योर लॉजिकल रीजनिंग अ लॉट। एंड उसके जो मैथ्स वाले जो रिलेवेंट कॉम्बिनेट्रिक्स वाला सेक्शन हो गया, उसमें जो प्रूफ्स लिखे होते हैं, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग देम ओवर टाइम, तो तुम्हारा CP भी एक्चुअली इंप्रूव कर जाता है। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई फील इज कि पीयर्स को देख के थोड़ा टेंशन में आना। यार देखो, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। तुम अगर टाइम दे के बैठोगे, तुम उसने वो 3 घंटे दे रहा है, तुम्हें 6 घंटे अगर तुम दे रहे हो डेली, तो तुम ओवरटेक कर जाओगे। ठीक है, एंड यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर इन योर ब्रेन। मतलब तुम पहले 2-3 दिन बैठो, अपने लिए एक प्लान क्रिएट करो, एंड यू हैव टू फॉलो इट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग फॉर नेक्स्ट 3 months। एक तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग फोमो में बड़ा जल्दी आते हैं, है ना। अरे भाई, मेरा दोस्त वेब 3 कर रहा है, मेरे को भी वेब 3 करना है। अरे उसने कुछ तो भी ओपन सोर्स का प्रैक्टिस कर रहा है, वो मेरे को भी करना पड़ेगा। ये सब नहीं होता है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम सब एक्सप्लोर कर सकते हो। बस तुम जंपिंग करना अगर बंद करो तो कुछ काम नहीं। ठीक है, चलो, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। We'll have more interactions probably in future. I am very much live on YouTube. Lives पे आ जाओ if you are interested in discussing something. ठीक है? And if you have any query, please feel free to reach out to me on LinkedIn. Okay? Thank you everyone. I'll see you. So hi, my name is Vivek and I am someone who has worn multiple different hats. During my college years, I have done a lot of competitive programming, and post my college, I started doing work as a software engineer at Google. In my college, I had done an internship at Adobe, and post that of all of this Google, I have moved to startups as well, 0xPPL, and now I'm currently building my own company, AlgoZenith, right? So have worked on ML DL related techniques in my Adobe internship, have worked on pure software engineer. In fact, if you think about Gmail, if you see the search bar at the top, the results as well as the infra of that was controlled by my team in Google. Post that in 0xPPL, I have worked on around Web3 space, building intelligent systems that can answer queries on top of all the transactions happening on the Web3. And now I'm building AlgoZenith, which is a B2B and B2C edtech, which helps students in their colleges to prepare for their internships and placements. So I think IIT KGP itself helped me to get really good at tech, but post that I was always building AlgoZenith parallel to whatever I was doing. So I was working at Google, parallelly I was doing teaching, building AlgoZenith and all. I think the founder experience at AlgoZenith was the main thing that has shaped my attitude as well as my character today's time. But in terms of career, I think I still love being a software engineer plus someone who builds product. I love the energy of the students. It was a great day and great audience. I felt that these students can actually do really good once they are getting this guidance at the start. If you always start early, you have really good road in front of you that is paved for you, that would lead you to great places. So I love the audience over here and I am looking forward to helping them even in future. I think simply they are starting early. I feel very few other colleges generally have students in their first year thinking about doing competitive programming or understanding how things work. Mostly they go through a regular repetitive curriculum that is fairly boring and in fact sometimes irrelevant in today's time. It's good to see that these students are getting exposure to such kind of things in their first year, first semester itself, and I think that will help them get to really good places.
So I do believe in new universities in general. I do believe that this is how things would be changing, because in most of the other colleges the curriculum is fairly old and it's too late by the time people realize what actually needs to be done to build a career. Most of these students are actually looking for a career built after the college. So I think the curriculum design is very good for that. One advice I feel, with AI coming in, I think gone are the days when people had specialized skills and knowledge. It's at this point all about curiosity and the will to build something. So don't let your curiosity die and always have this attitude of building. I think that is something that will go a long way. And I think at the start, if you don't know how to do these things, problem solving, CP, DSA, these things that we are talking about, it actually inculcates these skills in you in a very structured way. So you can start with these things. That's just my take. So biggest challenge is, I feel, understanding the exact requirement, because for any startup, finding out the product market fit is the hardest part. You need to figure out what exactly works, what are the students actually looking for, and how to design the curriculum in a way that things work for them. Over time, we have iterated on multiple different things, and now we are probably able to get to a place where we are able to get the T and P. So any students who are joining us are expecting a training and a placement part. So we are trying to build both the part well. Plus, we have unlocked multiple B2B wings, and we are still in a stage where we are connecting with many more colleges and helping them. Probably we are still in a stage where I might not be the best person to answer this, but I do think we have faced a lot of difficulties in different parts of these components and have been able to mitigate them in a certain way.